हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऐसा टॉपिक है जिससे ईच ईयर 1 to 2 क्वेश्चन कंपलसरी है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अब इसको पढ़े देखें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है क्या? एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है, ठीक है, वो कई तरीके से होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, एक इमिशन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन में आता है थर्मल इमिशन। इलेक्ट्रॉन के इमिशन में क्या आता है? थर्मल इमिशन। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक आता है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इफ वी अप्लाई हाई पोटेंशियल, ओके, देन अगेन इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल पॉसिबल। हाँ, हाई पोटेंशियल, high potential, okay, so if we apply high potential across a metallic surface, then there is a possibility to withdraw an electron from any metallic surface. Then here we are going to discuss about photoelectric emission. In photoelectric emission, when there is a metallic plate, assume this is a metallic plate. As you know, metals are the sea of delocalized electron. It means there is enormous number of electrons lying in the surface inner side of a metallic object. When the radiation of sun falls on this metallic surface, then ejaculation of electron will take place. Okay, when fall of sunlight or any radiation on metallic surface, then ejection of electron will take place. क्या all type of radiation will fall on the metallic surface will cause the electron removal? No. So what is the condition? There is a term h nu naught that we have to say work function. There is a term that is h nu naught, that is work function. इसको हम लोग बोलेंगे work function. क्या बोलेंगे? work function. So सर आपने एनर्जी को h nu naught क्यों लिखा? Because Max Planck in his theory stated that the radiation is the bundle of energy, that is the photon, or you can say quanta. This is the radiation are the bundle of energy. It means they are bundle of energy and striking on the metallic surface. If they are bundle of energy, then how much energy hold by a photon? That is h nu. Where is nu is frequency. Where nu is frequency and h is प्लैंक्स कांस्टेंट. इसको बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, अगेन देखते हैं. इफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu स्ट्राइक्स ऑन अ मेटेलिक सरफेस, ओके, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू विथड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, दैट इज h nu naught. ओके, फार्मूला ऑफ एनर्जी इज h nu. Nu is the frequency here. Okay, so where is the rest of energy goes? Because we know the conservation of energy from class 8 up to 11, several times conservation of energy. It means energy can neither be created nor be destroyed. तो h nu naught तो एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन के विड्रॉल में. हाँ, हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कितनी एनर्जी लगी? h nu naught. तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ गई? तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज द हाफ mv स्क्वायर, where mass mv me is the mass of electron. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजेक्शन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी किसके पास आएगी? इलेक्ट्रॉन. तो ये जो मास है ना काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस. ओके, वी कैन आल्सो राइट दिस काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2. वी कैन आल्सो राइट kinetic energy in terms of electron volt. Here v is the velocity and here v is the potential. Here v is the potential, electric potential you can say. Okay, ये सिंपल ए में जो आप लोग बैटरी में पोटेंशियल यूज करते हो ना, वही पोटेंशियल है ये. ओके, आगे फिर यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को देखो जो कि आइंस्टीन के थ्रू दी गई थी. इसमें क्या है? इफ द एनर्जीज का डिफरेंस ले लेते हैं, मतलब इंसिडेंट एनर्जी दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड दिस इज द वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी
क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इफ h nu is 2.3 electron volt and h nu naught is 2.1 electron volt. Okay, so here h nu is the energy of incident radiation, that is the energy of the photon, and what is the h nu naught, that is the work function, and this work function will depend on the metallic surface. It is specific for specific material. Okay, so we have to take a h nu minus h nu naught, that is the kinetic energy. Simply 2.3 minus or 2.1 electron volt, that is the kinetic energy. Again, this kinetic energy is 0.1 electron volt. ये kinetic energy किसके बराबर हो गई, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. तो हमने एक सिंपल देख लिया, एक फोटोन आ रहा है, फोटोन आके मेटेलिक सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो रहा है. तो क्या हमेशा ही जरूरत पड़ेगी क्या कि कोई भी फोटोन आएगा और एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा? क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे ये न्यूक्लियस है, ये बेसिक एग्जांपल है. तो जहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, अभी फोटोन इसको स्ट्राइक करता है, लेट्स से दिस इज द केस है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कहां जा सकता है, एल एम, वैसे इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट पे चला जाएगा. तो जो वर्क फंक्शन है एक्चुअली ये वर्क करता है एज एन आयनाइजेशन एनर्जी की तरह. ओके, तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगी, दैट इज द वर्क फंक्शन, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. इसका मतलब जो हमने फाई बोला है इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन, फाई को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट material. Okay, this work function is different for different material. Like we can take an example from the group first element. So what are the group first element? Like lithium, sodium, lithium, potassium, rubidium, cesium and francium. Francium is the rare metal, rare अर्थ एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है, वहीं डिके हो जाता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे. सीजियम इन द फर्स्ट ग्रुप वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम इज स्मॉलेस्ट. व्हाई सो? बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सीजियम इज स्मॉलेस्ट. उसके बाद वर्क फंक्शन किसका आएगा, रुबिडियम का, जो कि इससे ज्यादा होगा. तो मैं कहूंगा कि वर्क फंक्शन के ऑर्डर में इनको अरेंज करो, तो सबसे लीस्ट वर्क फंक्शन होगा आपका सीजियम का, उससे कम किसका होगा, रुबिडियम का, उससे लेस कौन होगा, पोटेशियम का. लाइक दैट एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है. ठीक है, सो आपने क्या देख लिया यहां से, h nu minus h nu naught equals to kinetic energy and minimum energy for the removal of photon. If I ask you and photon of energy 2 electron volt strike on a metallic surface having work function 3 electron volt. It means h nu that is 2 electron volt and work function h nu naught that is 2.001 electron volt. Is there electron emission will take place? No, because why? Energy of incident radiation is less to the energy of work function. से क्या होगा, लेस होगा, तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन नहीं होगा. तो आप कह सकते हैं सर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आपने एक काम करें सर, इस पे 2 फोटोन को फॉल करा दें. If we fall 2 photon on same electron, then also there is no removal of electron. It means a single photon will remove single electron. Clear? एक सिंगल फोटोन ही एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है. ऐसा नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन आए और कहे अब तो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो जाएगा. नो, ठीक है, दिस इज नॉट द केस. ओके, नाउ कम टू द इक्वेशन. देयर इज अनदर टर्म दैट इज द इफ. नोट करें इस बात को, this is the photoelectric equation. H nu equals to h nu naught plus kinetic energy, that is h nu naught plus electron volt. Okay, another intensity. What is intensity? Number of photons striking particular area of cross section.
ठीक, तो इंटेंसिटी में हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स की। तो अभी क्या है कि इफ h nu मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देन इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी, I stands for intensity, I stands for intensity is directly proportional to the current, और यहाँ पे इस करंट का नाम क्या होगा, फोटो करंट। क्या बोलेंगे इसको, फोटो करंट। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, ओके, जैसे ही हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे हमारे करंट की वैल्यू भी डायरेक्टली इंक्रीज करेगी। तो आई और आई वर्सेस कर्व कैसे बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। पहला ग्राफ जो आपको पढ़ना चाहिए। सेकेंड ग्राफ देखिए आप, अगर आप इसमें, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई को, हाँ, तो ये जो है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इसको वर्क फंक्शन क्या है, किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। दोनों तरफ हम ई से डिवाइड कर दें, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एच बाई न्यू ई मल्टीप्लाइड बाई न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई। अभी प्लेस कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द इजैकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द इजैकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी न्यू नॉट को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर द पॉइंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड लैम्डा नॉट को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। क्लियर है बात। अभी ये क्या, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, ये क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आगे, इफ वी कंपेयर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन with the equation of a straight line, and what is the equation of a straight line, that is y equals to mx plus c. What is the equation of a straight line, y equals to mx plus c, okay, where y is taken as the potential coordinate y axis, x is the x coordinate that is compared by frequency, and in place of h which is y intercept, जो ये c होता है ना कांस्टेंट। तो जैसे हमने एक इक्वेशन बनाई है y इक्वल्स टू x प्लस सी, तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ c। y को कहां पे इंटरसेप्ट किया है, ओरिजिन से। पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव। लाइक इफ वी कंपेयर दिस विद दैट, देन वी विल गेट अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल। v का मतलब यहां पे क्या है, पोटेंशियल। वी गेट ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। We get a graph of potential versus frequency. What we will see? This is the constant, and the negative sign there indicate that too many graphs of like this. Okay, we will obtain lines like this, where these lines cut this axis. That is the kinetic energy. That is the h nu naught by e. That is the h nu naught by E, that is the h nu naught by E, and slope of each line, if we compare the value of m, if we compare the value of m, if we compare the value of m, that is h by E. So slope of every graph, every line, that is h by E, okay. The slope of every graph, that is h by E, okay, clear. So what is the value? What is the value of these points? These points show what, stopping potential for different metals. What does it indicate? Stopping potential or work function for different. If we multiply this point, let's take this is nu 1, this is nu 2, this is nu 3. Okay. So nu 1 multiplied by h, that is the stopping potential for first h nu
2, that is the stopping potential for work function for the second metal. Okay, let's see a few questions on this topic. Before that, we have to take another question, another topic from this, that is frequency versus stopping potential. Okay, so if we take a graph like this, and this is the potential, a different frequency but same intensity. इंटेंसिटी का मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स. फ्रीक्वेंसी का मतलब उनकी एनर्जी से है. ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन से है, जबकि फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी से है. ठीक है, तो देखो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर प्लेस करते हैं. लाइक दिस इज ν3, ν2, ν1. ठीक है, तो इसका नेगेटिव का स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा. तो इधर देखो इस पॉइंट की इधर पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव का. इधर यहाँ पे तो इसका नेगेटिव का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. भाई कैसे आपने ऐसे कहा सबसे ज्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका क्यों होगा नेगेटिव का? तो देखो भाई हमने ऐसा देखा कि एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर फिक्स्ड मेटल. इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एच न्यू, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी also increases. The value of kinetic energy also increases because kinetic energy is equals to E times of V naught. A is fixed but potential can vary. But this is negative. This is negative potential. Okay, this is negative potential. All clear? Next, one more graph. If we take a graph of intensity versus stopping intensity versus potential, तो अभी क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम है. अभी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये आपका पोटेंशियल है और ये आपके लिए इंटेंसिटी है. तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि जो फोटो करंट है वो क्या हो जाएगा? सेचुरेट हो जाएगा. ये I3 है, ये I2 है, ये I1 है. तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पहली चीज, इफ देयर इज डिफरेंट इंटेंसिटी देन दैट इज नॉट अफेक्टेड द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, सो व्हाई देयर इज डिफरेंट इंटेंसिटी कर्व. ओके, तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स. इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल, let's take an example. This is metallic surface. A photon of some energy strike this particular electron. Okay, there are too many electron. तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इंटीरियर में रहे, तो उनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी. तो एक के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? लेट्स से 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरे के पास कितनी? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं एक ट्यूब बना दूं जिसपे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पा रहे. बट इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल पोटेंशियल, देन इजीली दिस इलेक्ट्रॉन विल आल्सो रीच टू दैट पॉइंट. ओके, देयरफॉर इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल, current will also increase, but at a certain time it saturate. Okay, when all the electron emitted from this metallic surface reach to that point, if all the electron emitted from this point reach to that point, then saturation will take place. Okay, thank you.